Good morning, sweet little children. I hope you all are fit and fine and enjoying your virtual classes. Today, also, we have something interesting for you. First of all, we'll see animation based on moral value. Ashok is the class leader of 7th standard. Their teacher is very particular that everyone should attend the prayer in the morning. Missing it would lead to serious punishment. That day, Ashok finds that Murali has not attended the prayer. Murali, why did you skip the prayer? You know our teacher is very strict about it. Before Murali could answer, the teacher enters the class. Ashok, did everyone attend the prayer meeting today? Sir, except Murali, all came for the prayer. What, Murali? Is it true what Ashok says? Did you stay away from prayer? The whole class is eagerly waiting to see Murali being punished. All in the class, except few, are very jealous of Murali, who studies well, behaves well, speaks well. His handwriting is neat. He keeps his books neat. Murali, you know, whoever misses the prayer will be punished. Before giving you the punishment, I would like to know why you stayed away. I came to the class in time only, but the others have already gone for prayer. So I kept my books inside the classroom and was about to go when I noticed that the classroom was in shamble with dust, rubbish and whatnot. The whole place was dirty and unhygienic. You have told us that cleanliness is next to godliness. The boy who is in charge of cleaning did not do his duty. So I cleaned the room and could not attend prayer. Since you have taught us dignity of labor, I volunteered to tidy up. If I have done something wrong, please pardon me, sir. I am ready to accept any punishment by you. Murali, you have done a wonderful job. If everyone thinks and acts along your views, our school will become famous. I am very proud to have you as my student. There is no punishment. He was highly appreciated by the teacher, who again points out Murali as a model to be copied by all the others. Students, today we will take up our next topic, that is lesson number 5, articles. The topic is articles. I think you all are familiar with the topic. सबने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना पहले? पता है ना सबको आर्टिकल्स क्या होते हैं? We have 3 articles. They are a and the. कौन कौन से आर्टिकल्स हैं 3? a and the. आज हम आगे ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज होते हैं. a and the, इन तीनों का यूसेज देखेंगे हम कहाँ होता है. Now, first of all, we will take up a. A is used before singular countable nouns that begin with a consonant sound. अब consonant क्या होता है? Consonant क्या होता है बेटा? जैसे हिंदी में हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं ना, 2 तरीके के होते हैं. एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन. जो व्यंजन होते हैं, इसी तरह से हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं? अल्फाबेट्स वो कौन से होते हैं? कॉन्सोनेंट, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. इंग्लिश अल्फाबेट में कितने हमारे लेटर्स हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं हमारे इंग्लिश में? 26. 26 में हमारे 5 वोवेल्स हैं और बाकी 21 जो हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. जो है ए ई आई ओ यू, ये 5 हमारे वोवेल्स हैं. इन 5 को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं. तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अ इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम अ लगाते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है. मतलब कि अ ई आई ओ यू की साउंड नहीं आएगी, ए ई आई ओ की साउंड नहीं होगी. बाकी जो साउंड्स होंगी जितनी भी
उनसे पहले अगर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा? अ। फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, दिस इज अ बॉल। देखो ये बॉल है ना, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? अ बॉल। अ कार, कार है ना बेटा, ये देखो ये कार, अ कार सिंगुलर है, एक है कार हमारे पास, है ना। और इसकी साउंड क्या है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये किस अल्फाबेट से? सी से साउंड हो रहा है ना, तो इसमें वॉवल की साउंड तो है नहीं है ना, तो इसके आगे क्या लगेगा? अ। नेक्स्ट इज अ टॉय, दिस इज अ टॉय, ये टॉय है हमारा, है ना। तो टॉय भी कौन सा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, किस अल्फाबेट से? टी। तो इसके आगे कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ट की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने क्या लगाना है? अ लगाना है। नेक्स्ट इज एंड। एंड इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स दैट बिगिन विद अ वॉवल साउंड। एंड कहाँ यूज होता है बेटा? जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मतलब सिंगुलर है नाउन हमारा, और वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। वॉवल साउंड कौन सी होंगी? अ ई आई ओ यू वाली, ए ई आई ओ यू वाली जो साउंड है वो हमारी जब होगी, उससे पहले क्या आएगा? एंड। क्या यूज करेंगे हम? एंड। फॉर एग्जाम्पल एंड एप्पल। अब ये एप्पल देखो, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? एप्पल से पहले एंड, क्योंकि अ से स्टार्ट हो रहा है ये, है ना। इसकी साउंड क्या है? ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इसकी साउंड है ए। तो ये क्या आएगा? एंड एप्पल, और ये सिंगुलर भी है। तो नेक्स्ट इज एंड ऑरेंज। अब ये ऑरेंज भी सिंगुलर है, और इसकी साउंड क्या है? ओ। कौन सी है? ओ से स्टार्ट हो रहा है, साउंड क्या है? ओ। ठीक है, तो ये क्या है? वॉवल, वॉवल है ना ये, और सिंगुलर भी है, तो इससे पहले क्या यूज होगा? एंड। नेक्स्ट इज एरोप्लेन। ये देखो एरोप्लेन है, एंड एरोप्लेन, इससे एरोप्लेन से पहले क्या लगेगा? एंड, क्योंकि ये सिंगुलर है और क्या है? ये वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्या आएगा? एंड एरोप्लेन। Now the next is the. The is used when we mention something for the second time. जब हम किसी चीज का दूसरी बार यूज कर रहे हैं, दूसरी बार उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, सेकेंड टाइम बता रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? द। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ यंग बॉय सेलिंग न्यूज़पेपर्स। द बॉय नॉक्ड on the car windows to sell his newspapers. अब हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या यूज करा है? the boy, sorry, a young boy. फर्स्ट टाइम हमने क्या यूज करा? a young boy, boy है खाली। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या यूज करा बॉय के लिए? the, क्योंकि हम पर्टिकुलर इसी बॉय की बात कर रहे हैं, इसी बॉय की बात यहाँ पे हो रही है। वही लड़का जो न्यूज़पेपर बेच रहा था, वो क्या कर रहा था? नॉक कर रहा था विंडोज पे, कार की विंडोज पे, कि मेरे न्यूज़पेपर्स खरीद लो। तो उस बॉय के लिए हमने क्या यूज करा? रेपिटेशन हो रही है, तो क्या यूज करा है हमने? द। द इज यूज्ड बिफोर हेवनली बॉडीज। और कहां पे द यूज होता है? हेवनली बॉडीज से पहले। हेवनली बॉडीज से पहले क्या यूज होता है? द। फॉर एग्जाम्पल द सन। देखिए बेटा, ये पिक्चर किसकी है? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ सन। तो ये क्या होगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट। द यूज किया ना हमने सन से पहले। द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट इज द अर्थ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये देखो अर्थ है ना, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो हम क्या कर रहे हैं? यूज क्या कर रहे हैं? हेवनली बॉडी से पहले द यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स।
फेमस बिल्डिंग्स जो हैं उनसे पहले भी हम क्या यूज करते हैं? द। फॉर एग्जाम्पल द ताजमहल, ये देखिए, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ताजमहल। द ताजमहल इज बिल्ट बाय शाहजहां। शाहजहां ने बनवाया ना ताजमहल, द ताजमहल। हम द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इट्स अ फेमस बिल्डिंग। नेक्स्ट इज द इंडिया गेट। द इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट न्यू दिल्ली में है। द इंडिया गेट बिकॉज इट्स अ क्या है? फेमस बिल्डिंग, इसलिए क्या यूज किया है? द। Before the names of rivers and oceans, और हम कहाँ पे द यूज करते हैं? किसी भी रिवर या ओशन के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल द गंगा। द गंगा रिवर है ना, बहुत फेमस रिवर है, आपको पता ही है। उससे पहले क्या यूज करेंगे? द गंगा। नेक्स्ट इज द यमुना। कौन सी रिवर है? द यमुना, क्योंकि ये रिवर है, रिवर के नाम से पहले क्या आएगा? द। नेक्स्ट इज द पैसिफिक ओशन। कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन। ओशन के नाम से पहले बेटा क्या यूज करना है? द। नेक्स्ट इज द इंडियन ओशन। कौन सा ओशन? इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से पहले क्या यूज होगा? द, क्योंकि हमने द कहाँ यूज करना है? बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशंस। नेक्स्ट इज और कहाँ यूज कर सकते हैं हम द? इट इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। जो हमारे पवित्र जो ग्रंथ हैं, तो उनसे पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द। द गीता, फॉर एग्जाम्पल द गीता, द रामायण, द बाइबल, ये हमारी होली बुक्स है ना सारे, इनसे पहले हम क्या यूज करेंगे? द। और देखो बेटा किस से पहले द यूज होता है? बिफोर अ कम्युनिटी और अ ग्रुप। किसी एक ग्रुप या फिर कम्युनिटी जो जाति होती है पूरी, उससे पहले हम क्या यूज करते हैं? द। फॉर एग्जाम्पल द इंडियंस, द रिच, ये पूरा एक ग्रुप होता है ना, पूरी एक कम्युनिटी होती है ना। द रशियन। नेक्स्ट इज और किससे पहले हम द यूज करते हैं? It is used with the names of newspapers. Newspapers के नाम के साथ भी the यूज करते हैं। बेटा आपके घर में न्यूज़पेपर तो आता ही होगा, डेली आता है ना। आप कभी भी न्यूज़पेपर उठा के देखना, उस न्यूज़पेपर का ऊपर जो नाम दिया होता है ना, बड़ा बड़ा सब ऊपर जो स्टार्टिंग में, उसके आगे द जरूर लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो द ट्रिब्यून। अगर आपके घर में ट्रिब्यून आता है तो आप देखना उसके नाम से पहले द लिखा होगा, द ट्रिब्यून। नेक्स्ट इज द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये नेम है न्यूज़पेपर का, टाइम्स ऑफ इंडिया, उससे पहले द यूज होता है। और बेटा कहाँ कहाँ पे द यूज होता है? इट इज यूज्ड व्हेन द रीडर एंड द स्पीकर नो दैट अ स्पेसिफिक नाउन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। जब कोई बोलने वाला और पढ़ने वाला जो है उसको ये पता हो कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक, किसी खास जो है नाउन के बारे में बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक किसी खास नाउन की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल वेयर हैव यू केप्ट द कीज। अब यहाँ पे जो स्पीकर है या फिर जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है या बोलने वाला है, उसको ये पता है कि कौन सी कीज की बात हो रही है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? द, क्योंकि स्पेसिफिक उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट इज सोनू हैज गॉन टू द टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि स्पेसिफिक टेम्पल की बात हो रही है। रीडर को मालूम है, स्पीकर को मालूम है कि ये कौन से टेम्पल की, पर्टिकुलर किसी टेम्पल की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया है? द। और बेटा देखो द कहाँ यूज होगा? इट कम्स बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं
के नाम से पहले क्या आता है? द। क्या यूज करते हैं? द। फॉर एग्जाम्पल, जैक प्लेज द वायलिन। यहाँ पे वायलिन क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने इससे पहले क्या यूज किया है? द। नेक्स्ट इज द फ्लूट इज अ विंड इंस्ट्रूमेंट। अब फ्लूट क्या है? क्या है फ्लूट? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे? द। अब आपको बेटा इतना तो समझ आ गया कि अ एंड द आर्टिकल्स हमने कहां कहां पे यूज करने हैं, ठीक है? नाउ वी विल टेक अ एक्सरसाइज पार्ट। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट। Fill in the blanks with suitable articles. Suitable articles जो भी आपको लगते हैं बेटा, वो आपने यहाँ इस एक्सरसाइज में फिल करने हैं। आर्टिकल्स कौन से हैं? अ एंड द। अ एंड द आपको जो एप्रोप्रिएट लगते हैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज में यू हैव टू फिल। नंबर 1, शीना लिव्स इन डैश स्टेट ऑफ राजस्थान। अब स्टेट कौन सी है? राजस्थान। पर्टिकुलर स्टेट की बात हो रही है ना, तो हम क्या यूज करेंगे? जो डेफिनेट होता है तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा? कौन सा है? द। हम क्या यूज करेंगे? द। नेक्स्ट इज नंबर 2, प्लीज गिव मी डैश ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। अब ये क्या है? सिंगल काउंटेबल नाउन है और ये स्टार्ट किससे हो रहा है? ग्लास किससे स्टार्ट हो रहा है? ग्लास सिंगल है ना, हमारा काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, और किससे स्टार्ट हो रहा है? जी से। तो जी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। तो हमने कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगाना था? अ। क्या लगाएंगे? अ ग्लास। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। नंबर 3, अंडर डैश एडवाइस ऑफ डैश डॉक्टर सुमिता टुक हर मेडिसिन्स। अब अंडर डैश एडवाइस, अब ये क्या आएगा हमारा? एडवाइस। पर्टिकुलर डॉक्टर ने जो एडवाइस दे रखी है पर्टिकुलर, वो क्या है? द लगाएंगे। अब हम डेफिनेट आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? द, क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस दी हुई है। अंडर द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर नाउन है ना ये डॉक्टर, तो इससे पहले और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लगाएंगे हम? अ। Next, number 4, my sister is in dash classroom completing her artwork. अब यहाँ पे बेटा हम पर्टिकुलर क्लासरूम की बात कर रहे हैं जहाँ पे सिस्टर काम कर रही है, आर्ट वर्क कर रही है। तो जब पर्टिकुलर हो जाएगा तो क्या यूज करेंगे? द। क्या आर्टिकल कौन सा यूज होगा? द। नेक्स्ट इज नंबर 5, सविता हैज गॉट डैश कैट। सविता के पास कैट है, तो कैट सिंगुलर है, ठीक है ना? सिंगुलर नाउन हो गया और साथ में कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो क्या आएगा? अ कैट। व्हाट इज डैश कैट्स नेम। अब उसी कैट की बात हो रही है, रेपिटेशन हो रही है ना, यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, उसी कैट की बात कर रहे हैं, तो रेपिटेशन में क्या आता है? द। व्हाट इज द कैट्स नेम। Number 6, is there dash coffee shop dash the road. Is there a coffee shop down the road. क्यों आया? क्योंकि कॉफी शॉप की बात हो रही है। कौन सी? यहाँ पे कॉफी शॉप सिंगुलर है और कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या आएगा? अ। नेक्स्ट इज रोड। रोड से पहले द क्यों आया? क्योंकि पर्टिकुलर उसी रोड की बात हो रही है जहां पे कॉफी शॉप है। नंबर 7, कैन यू गिव मी डैश एनवेलप प्लीज। अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? देखो बेटा, एनवेलप क्या है? सिंगुलर नाउन है ना, और किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से। तो ये क्या है? वॉवल साउंड है ना, तो क्या आएगा? वॉवल साउंड से पहले हमें क्या लगाना था? एन। क्या आएगा? एन एनवेलप।
Can you give me an example, please? Number 8. Football is dash popular sport in dash world. अब फुटबॉल इज डैश पॉपुलर स्पोर्ट. अब यहाँ पे क्या आएगा? अ पॉपुलर स्पोर्ट, क्योंकि ये कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट. उसके बाद वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड से पहले द आएगा क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल आएगा. यहाँ पे वर्ल्ड एक ही है, संसार एक ही है, 2 3 4 तो नहीं है. तो इसका मतलब हम डेफिनेट उसी की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की. तो ये डेफिनेट आर्टिकल आएगा द. नेक्स्ट इज नंबर 9. रश्मि इज रीडिंग डैश एडवेंचरस बुक. कौन सी बुक की बात हो रही है? एडवेंचरस बुक. तो एडवेंचरस के पहले क्या आएगा? एन. क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, सिंगुलर है ना? तो क्या आएगा? एन. नंबर 10. सुमन वुड लाइक टू ट्रेवल अराउंड dash world and write dash book on it. अब यहाँ पे क्या आएगा? हमने ऊपर भी वर्ड से पहले क्या यूज किया है? द. डेफिनेट आर्टिकल आना है ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ डेफिनेट आर्टिकल आएगा. एंड राइट अ बुक ऑन इट, क्योंकि यहाँ पे बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन से पहले क्या आएगा? अ, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है. बुक बी साउंड है कौन सी? कॉन्सोनेंट. तो लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्कशीट्स रिलेटेड टू द टॉपिक. You have to practice them in the practice notebook.